Hello, class 11 children. So, today we are going to finish up with the last part of our chapter number 17. And here we go. What are we going to study today, children? It's about transport of gases, that is, oxygen and CO2 in the blood, how this exchange happens, and oxygen dissociation curve, plus the problems or the disorders of your lungs. First of all, transport of gases in the blood. See, children, we have to study majorly about oxygen and CO2, that how they are traveled in our blood. First of all, if we look at oxygen, 97% of oxygen is traveling in the blood attached with the hemoglobin present in RBCs. Are you getting? 97% of oxygen that travels in the blood, it is only and only when it is attached with the hemoglobin, and it's only 3% of oxygen which moves in the plasma of the blood. I hope you are aware of the term plasma. प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड. तो उसमें सिर्फ 3% ऑक्सीजन होता है. मेनली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन RBCs. तो जिसमें ज़्यादा RBCs उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी. एंड इफ वी लुक on the other side to the CO2 part. CO2 children, you need to remember, जब भी आप एक blood vessel को imagine करें in case of this transport of gases, just imagine a blood vessel, an RBC and the plasma. In case of CO2, what you have to remember that RBCs are carrying 20 to 25% of CO2. What? The RBC in the blood is carrying 20 to 25% of CO2 और oxygen कितना था? 97 by RBC. 7% of CO2 is carried in blood plasma and oxygen कितना था? 3% in blood plasma. But majorly the CO2 is traveling in the form of bicarbonate ions, and what is that percentage? It is 70%. 70% of CO2 is traveling in the form of bicarbonate ions. जो normal CO2 की form में है वो सिर्फ 20 to 25% in RBCs and 7% in blood plasma. 70% exists as bicarbonates in RBCs as well as plasma. I'll come later on in the detail that why such figure is there of CO2. Moving on further, first of all, transport of oxygen, under which we are going to study about oxygen dissociation curve. This curve will let us know how oxygen is distributed throughout the body. Fine. This curve, oxygen dissociation curve, is basically based on the two axes, in which what we are going to plot. In one of the axes we'll be plotting the saturation of oxygen with hemoglobin. I hope you know this कि जो RBCs हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन के पास 4 bonds होते हैं, and those 4 bonds get attached with oxygen अगर उनको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, और they get with CO2 attached with CO2 if they are forming carboxy hemoglobin depending on the conditions. So saturation of that oxygen, जो hemoglobin के 4 bonds हैं, if they all are filled up with oxygen molecule, then of course hemoglobin is saturated. So एक axis पे saturation of oxygen with hemoglobin, and एक axis पे होगा partial pressure of oxygen. Now what is this partial pressure? In the air there is a mixture of gases. Each gas is exerting a pressure. तो जब हम इन सभी गैसेस के प्रेशर्स का टोटल करें तब अपने पास एक वैल्यू आएगा. तो अगर उस वैल्यू में हर गैस का प्रेशर देखें तो वो क्या है? पार्शियल है, पूरा प्रेशर नहीं है किसी एक गैस का. In the air there are several gases, so that is why what we are saying, we are using the term partial pressure. Moving on, here is the structure of a hemoglobin. On my extreme left side, these are the RBCs, and this RBC they have highlighted here on the right side कि इसमें present होता है एक hemoglobin. Okay, this structure on the right side is the structure of a hemoglobin, which is containing 4 molecules of oxygen. Can you see here? Red color के 2 pairs हैं, red color के ये oxygen molecules and they are 4 in number. मतलब ये जो hemoglobin है, it is saturated.
इसको सिर्फ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की भूख थी और चारों के चारों इसको मिल गए, तो इसका पेट भर चुका है. इट मीन्स इट इज़ अ सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन. I hope it is clear now, better than before. Moving on further. Now this is the oxygen dissociation curve. Fine. You can see here that on the left side what we have plotted, hemoglobin saturation percentage. आपकी बॉडी में जो RBCs हैं ब्लड में, उन RBCs में जस्ट हैव अ लुक, उन RBCs में ये हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन लग रहा है. अगर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन से भर चुके हैं तो दे आर 100%, ऑलमोस्ट नियर टू 100% सैचुरेटेड, और अगर अभी शुरुआत है तो उनका सैचुरेशन परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है. फाइन. अब ये जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ये कैसे कैसे इंक्रीज होगा? व्हेन वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑन द सेकेंड एक्सिस विद ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर. अगर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है, CO2 का प्रेशर कम हो रहा है, मीन्स इफ इन द ब्लड मोर ऑक्सीजन इज देयर, यानी कि मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर, तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी एंड हेंस मोर एंड मोर ऑफ इट विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द बॉडी. Now see children, if you observe the graph carefully, there has been shown, there's a normal regular line of red color in between. ठीक है. Surrounding it are two dotted lines on the left side and on the right side. अब ये जो कर्व है जो नॉर्मल है, ये कब लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, आप बॉटम में देखिए जहाँ पे 0 वैल्यू है ऑफ बोथ द एक्सिस, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाँ लुक हियर, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी 20 से ज़रा सा ऊपर है, इट्स लिटिल बिट अबव 20. सो मीन्स इफ वी लुक एट 40 ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, द सैचुरेशन इज इंक्रीजिंग अबव 60% ऑफ हीमोग्लोबिन. मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, उतना ज़्यादा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एंड उतना ज़्यादा सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन विल इंक्रीज, मीन्स मोर एंड मोर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन. एंड हमारा ये कर्व कैसा आएगा? इट विल बी इन दिस वे, सिग्मोइड पैटर्न, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एक हद तक ही इंक्रीज हो सकता है ऑक्सीजन का. जितनी मर्जी ऑक्सीजन इंक्रीज होती जाए, हीमोग्लोबिन तो आपकी बॉडी में उतने ही है ना जितने RBCs हैं. तो जब एक टाइम आता है कि सभी RBCs भर चुके हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑल द हीमोग्लोबिन्स हैव बीन बाइंडेड अप विद ऑक्सीजन बट स्टिल ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इस ग्राफ में एक स्टेबिलिटी आती है. यू कैन सी हियर एट द एक्सट्रीम टॉप कॉर्नर ऑफ माई राइट साइड, ऑफ योर राइट साइड, ठीक है, वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऑफ दिस रेड वन. फाइन. ये क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुके हैं एंड नाउ देयर इज नो मोर capacity of oxygen molecules to bind up with the hemoglobin. बेशक ऑक्सीजन अभी भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा रही है. Now children, you need to remember there are few more conditions for the binding of oxygen to hemoglobin. It's not only alone the partial pressure of oxygen कि अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी. No. What are the other 3 things? आपकी ऑक्सीजन तभी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी if, look at the left side, the 3 things are given. Temperature is less, partial pressure of CO2 is less, and of course हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी लेस है. H पॉजिटिव आयंस कम होना यानी कि pH उसका ज़्यादा होना, करेक्ट, pH will be more. So these are the 3 conditions. अगर ये 3 फुलफिल हो रही हैं with the effect of कि partial pressure of oxygen is more, तभी oxygen will bind with hemoglobin. Still in doubt? Do tell me. So this was about oxygen dissociation curve. Look at here the detailed concept. This is children an alveoli, the circular one, and it is being surrounded by a capillary. अब ये जो alveoli है, जब आप इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, उस वक्त ऑक्सीजन आपकी alveoli में ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है. तो मीन्स अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, उसका प्रेशर भी ज़्यादा हुआ, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई. अब यहाँ पर बाकी कंडीशंस सब कम है. व्हाट?
CO2 will be less, यानी कि CO2 का partial pressure will also be less. हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एंड टेम्परेचर भी कम होगा. जब ऐसी कंडीशंस हैं, ये चारों व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर ये है, तभी ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम alveoli to the capillaries. I hope it's clear. And the opposite will happen in the tissue level. वहाँ पे इन तीनों conditions का उल्टा, चारों conditions का उल्टा at the tissue level. Moving on further, here I have described that only what I have said right now. You can read it carefully. Next, very important, transport of CO2. अभी तो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. What we studied about CO2, 20 to 25% of it is carried by RBCs, 7% in the plasma, कैसा CO2 as it is, but 70% of CO2 is dissolved in the form of carbonic acid. Carbonic acid की form में वो carry होती है by the RBCs and the blood. I told you at that time that its answer will be told here, and it's here. The slide is here in which I'm going to tell. Now, on your extreme left in the picture, this is a tissue. ये brown color के tissues हैं. Tissues ने अपना सारा काम कर लिया है, खाना तोड़ लिया, एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं, वो अब खाना तोड़ा तो यानी ऑक्सीजन ली और क्या रिलीज़ किया, CO2. रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज़ कर रहे हैं. अब टिश्यूज़ के पास बहुत सारी CO2 हो चुकी है, मीन्स टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर इज मोर. एंड इफ़ वी सी द ब्लड वेसल हेयर ऑन द राइट साइड, जहाँ पे ये एक बड़ा सा पिंक कलर का RBC दिखाया है और ये सारा इसके आसपास ब्लड ही है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो ब्लड है, यहाँ पर CO2 इज़ लेस इन कॉन्सेंट्रेशन. अब बाकी भी वो कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर, H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल, ठीक है, वो सब भी वैसे ही एज आई डिस्कस्ड अर्लियर. तो वॉट यू नीड टू रिमेंबर, एट द टिश्यूज, इन द टिश्यूज CO2 पार्शियल प्रेशर इज मोर, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस. अब क्या होगा, CO2 विल ट्रैवल फ्रॉम द टिश्यूज इन टू द ब्लड. अब जैसे ही ब्लड के प्लाज्मा में CO2 आई, 7% CO2 तो इधर ही रह जाएगी प्लाज्मा में, वो एज इट इज़ CO2 की फॉर्म में ही ट्रैवल करेगी. 20 to 25% जो है, बाकी की जो CO2 बच गई वो सारी RBC में जाती है, उसमें से 20 to 25% वो भी CO2 की फॉर्म में ही जाती है. अब जो 70% है उसके साथ क्या होता है, इट इज़ दिस, योर RBC इज कंटेनिंग एन एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. कैन यू सी देयर, carbonic anhydrase enzyme, this enzyme is present in the RBCs. ये जो enzyme है इसका क्या काम है, it combines CO2 with water, changes CO2 and water, combines it and then changes it into carbonic acid H2CO3. This carbonic acid finally changes itself into bicarbonate ions and H positive ions. Is it clear? This is a reversible reaction. तो अगर टिश्यू की साइट है, टिश्यू साइट, टिश्यू पे एक्सचेंज हो रहा है, देन दिस रिएक्शन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द राइट साइड. आई हैव मार्क्ड इट एट द बॉटम. और अगर यही चीज़ एल्वुलाई में हो रही है तो द रिएक्शन विल बी ऑपोजिट, कार्बोनेट आयन से उल्टा चलेगा एंड व्हाट विल बी फॉर्म्ड, CO2 एंड वाटर इन केस ऑफ एल्वुलाई, जब वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. आई होप इट्स क्लियर. मूविंग ऑन फर्दर, the same thing I have described here in the slide, you can again read it. जब भी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स, it forms carboxy hemoglobin or carbamino hemoglobin. Fine. Next, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. अब ये कौन कंट्रोल कर रहा है आपके रेस्पिरेशन को, कैसे आपके लंग्स को पता चल रहा है हाउ दे हैव टू ब्रीथ राइट नाउ, क्या करना है उनको, कब डायफ्राम अप, कब लंग्स बाहर अंदर, व्हाट, इट इज़ दिस न्यूरल सिस्टम हु इज कंट्रोलिंग. अब आपके न्यूरल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी, आपके जो ये रेड कलर के 2 डॉट्स हैं, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पॉन्स. यहाँ पर है एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर. व्हाट इज इट चिल्ड्रन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये जो रेड कलर का है, दिस इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स. ब्लू कलर के जो 2 डॉट्स हैं, सर्कल्स हैं और वट एवर द शेप्स हैं, दिस इज द respiratory rhythm center of medulla. I'm repeating again. Red colored dots are pneumotaxic centers of pons. Blue colored are
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ मेडुला, और इन्हीं के साथ एक और है कीमोसेंसिटिव एरिया विच हैज़ नॉट बीन शोन इन दिस फिगर. इस मेडुला के ब्लू कलर वाले के साथ, जो ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, इसी के साथ एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर. अगर CO2 एंड H पॉजिटिव आयंस, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और डिक्रीज, तो इमीडिएटली दिस एक्टिवेट्स एंड ये लंग्स को गाइड करता है कि अब उनको क्या करना है फर्दर. So this is the control of respiration. What is it? The blue colored is respiratory rhythmic center of medulla. Red colored is pneumotaxic center of the pons. And इसी blue color के साथ एक chemosensitive area भी है which is very very sensitive to the concentration of what? CO2 and water. Next is this thing only I have shared in the detail. Again, you can read it from here. फाइनली फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन वेरी सिंपल. रेस्पिरेशन होता है तभी तो ऑक्सीजन जाता है सेल्स को और खाना टूटता है और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो एनर्जी प्रोडक्शन. एसिड बेसिस का बैलेंस मेंटेन करता है. यू कैन सी हियर कैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस का भी रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी कि एसिडिटी बेसिसिटी कंट्रोल होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस. टेम्परेचर का मेंटेनेंस एंड रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड हार्ट से बाहर, बाहर से अंदर, exchange of gases and all this and all. The last one is disorders. First, asthma. Asthma children क्या होता है कि it's an allergic reaction. कोई foreign body आपके respiratory tract में घुस चुकी है, it can be any microbe or something, and उसकी वजह से आपका जो respiratory tract है it is being filled up more and more with mucus. Ultimately the patient is suffering breathing difficulties. उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, कफ होता है, एक अलग सा साउंड आता है while he is breathing in and out. ठीक है, so that is asthma. Emphysema. एम्फिसीमा में क्या होता है, जो आपकी एल्व्यूलाई हैं वो इन्फ्लेटेड ही रहते हैं, फूले ही रहते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, उनमें से हवा बाहर नहीं जाते हैं और वो साइज़ में छोटे नहीं होते हैं. दिस इज़ द प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज उनके बीच के सेप्टास ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, सेप्टा मतलब उनके बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो चुका है. वाई? बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं विच आर हैप्चुअल ऑफ टोबैको स्मोकिंग और अदर हार्मफुल गैसेस. ठीक है, तो उसकी वजह से सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जहाँ पर भी कोई वर्कर काम कर रहा है, कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वहाँ पर. ठीक है, इफ़ सपोज तो वो जो गैसेस इफ दे आर इनहेल्ड हार्मफुल वंस, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैन बी देयर. इट कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक डस्ट भी जा सकती है, लाइक जो कोल माइंस में काम करते हैं वहाँ पर बहुत फ्यूम्स होते हैं. Then silicosis, asbestos, these are some of the chemicals which if inhaled, respiratory or breathing disorders can be there. Last is pneumonia. What is pneumonia? It is inflammation of alveoli. Alveoli का गड़बड़ होना. क्या गड़बड़? Fluid का accumulation होना in the alveoli and dead WBCs वहाँ पर रहते हैं. Why? Because यहाँ पर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्टैफिलोकोकाई का, स्टैफिलोकोकस निमोनिया का. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये इसने पर्सन को इन्फेक्ट किया है, उसके एल्वुलाई में ये जाकर बैठा है. वहाँ पर WBCs ने कोशिश तो की इस बैक्टीरिया को मारने की, बट इसका नंबर वो सो हाई कि इसने WBCs को हरा दिया, उनको डेड कर दिया. एंड धीरे धीरे ये इट इज़ लीकिंग आउट ऑफ दोज एल्वुलाई membrane, hence making it porous and filling the fluid in the alveoli. अब जब alveoli में fluid accumulation होगा तो breathing difficulty होगा ना, कैसे exchange of gases होगा, exchange नहीं होगा तो सांस लेने में problem आएगा. So this is the pneumonia. So that's all children. I hope it's clear. Still any doubt, please do ask me. It can be you are having doubts in one or two topics from here. Please do ask me. Thank you children and take care.